Okay. In the last class, we studied about some properties related to transversal. दो parallel lines में जब एक transverse एक intersect करती है तो उसमें किस तरह के angles जो है वो form होते हैं और किन angles के बीच में क्या relationship होता है, ये सब हमने पढ़ा था. आज के जो हमारी exercise है lines and angles chapter की 6.3, it is basically based on sum angle property of a triangle and exterior angle property of triangle. Although we know कि some angle of जो भी some angle property होती है triangle की, that is 180 degrees, right? वो 180 degrees होती है. और exterior angle property भी हमें पता है कि it is equal, जो exterior angle बनता है that is equal to the sum of two opposite interior angles, right? लेकिन obviously अब हम देखो छोटी क्लास में नहीं है, we are not in the very junior sections. अब हम लोग एक सीनियर सेक्शंस में आ गए हैं and we need to prove the thing. अब हमें उन चीजों को प्रूव करना आना चाहिए कि yes, I am saying sum of angles of a triangle is 180 degree. But how will we prove? हम इसमें प्रूविंग करेंगे taking the concept of parallel lines. देखो बेटा, as you can see on your screen, you have a triangle PQR. Now what I did and what I need to prove, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. So what I have done, I have made a parallel line XY to QR. Okay beta. Now as you can clearly see, कि angle जो 4 होगा that will be equal to angle 2. Is that clear? Can anyone give me the reason? Yes? जी बताइए बेटा. ओके बेटा जी, बताओ बेटा. अंशु, क्या रीजन होगा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2? व्हाई आई हैव सेड दिस? मैंने इन दोनों को यस, तो इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड द रीजन इज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सिमिलरली पार्ट बेटा, सिमिलरली एंगल 5 विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा? angle 3. Angle 3, yes, and the reason will be same, they will be alternate interior pair of angles. Okay जी. So ये जो है हमारे एंगल्स अब ये इक्वल हो गए और हमने इनको क्या नाम दे दिया? फर्स्ट जो है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, मैंने इसे I1 इक्वेशन बना दी, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 3, मैंने इसे I2 इक्वेशन बना दी. ओके बेटा, क्लियर है ये बात? Yes, I hope this is clear. Angle 4 is equal to angle 2 and angle 5 is equal to angle 3. Now, angle 4 plus angle 5 plus angle 1 is equal to 180 degree. Why? क्योंकि they are forming linear angles. एक लाइन पे जब angles present होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 degrees. Now, see the substitution. देखो बेटा, angle 4 जो था that was equal to angle 2. So what I have done, I have utilized this thing. Angle 4 की जगह I have put the value of angle 2 here. See, yes. Now अब angle जो है मेरा 5 that was equal to angle 3. तो मैंने यहाँ पे angle I have used the value of angle 3. So which gives me a clear cut picture कि angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. So this shows the sum of the angles of a triangle is equal to 180 degrees. I hope this theorem is clear. Yes, Anshu, Parth, both of you clear beta? Yes ma'am. Okay. Yes ma'am. Yes. Chalo, should we move on? Yes. Yes ma'am. Okay. Chalo, next theorem is, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of its two opposite इंटीरियर एंगल्स. ये बात हम कह रहे थे कि ये चीज हमें नोन है, बट हाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थिंग, दिस इज द मेन थिंग कि हमने इसको प्रूव कैसे करना है. देखिए बेटा, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी बेटा जी? स्टेटमेंट है, इफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. अब नाउ वी हैव अ ट्राइंगल PQR एंड हम इस QR को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं टू अ पॉइंट S.
ओके अब एंगल्स जो हैं इनसाइड द ट्राइंगल बन रहे हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है बट तो यहाँ तो रेंज फुल आ रही है बेटा, मैं देख लेती हूँ एक बारी। मैम आ रही है। हाँ फुल है बेटा वॉल्यूम वैसे तो, चलो मैम मैं आ ओके बेटा जी। अब बेटा देखो एंगल जो 1 है हमारा, जो 1, 2, 3 है, दे आर फॉर्मिंग अ सप्लीमेंट्री। ठीक है ये जो है क्या बने, एंगल 1 प्लस रही एंगल आवाज। plus angle 3 is equal to 180 degrees. Okay, because of some angle property. तो ये क्यों बना बेटा, some angle property से हमारे ये तीनों angles जो हैं they are equal to 180 degrees. But अगर अब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो फिगर को, एंगल 3 और एंगल 4 क्या है, एक लीनियर पेयर है। ठीक है, दे आर फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। तो इसका क्या मतलब बना कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम इससे what we will do, we will put angle 3 in terms of angle 4। ये देखो हमने एंगल 3 को नाम दे दिया कि 180 डिग्री माइनस एंगल 4 आ गया। ठीक है, इसको हमने मान दिया I2। अब दोनों इक्वेशंस में अगर हम इस एंगल 3 की वैल्यू अगर हम अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं तो व्हाट आई एम गेटिंग एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 180 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। यस, तो मैंने क्या किया, अब ऑब्वियसली ये सेम साइन है तो दिस विल बी स्टक ऑफ। अब ये माइनस है तो ऑब्वियसली जब मैं इसको इस साइड लेके जाऊंगी तो इट विल टर्न पॉजिटिव। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। यही हम प्रूफ करना चाहते थे। ये एंगल 1 ये एंगल 2 इन दोनों का सम इज इक्वल टू एंगल 4। दिस इज योर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक बार दोबारा से समझा देते हैं बिकॉज अंशु वाज नॉट देयर। हमने यहाँ पे सम एंगल प्रॉपर्टी यूज की है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बट हमें फिगर से क्लियर है कि एंगल 3 और एंगल 4 जो है वो एक लीनियर पेयर बना रहे हैं। सो दैट मींस एंगल 3 plus angle 4 will also be equal to 180 degrees. Now I will be using angle 3 in terms of angle 4. So angle 3 becomes 180 minus angle 4. Now I will substitute this value in I1. So I got angle 1 plus angle 2 is equal plus 180 minus angle 4 is equal to 180. So 180 on the both sides got stuck off and I am left with angle 1 plus angle 2 is equal to angle 4. Yes, is that clear? Yes. Now our first example of this exercise is in the figure given, if QT is perpendicular to PR, okay, QT is perpendicular to PR and angle TQR is 40 degrees, yes, and SPR is 30 degrees. You have to find X and Y. देखो बेटा, what we are given एक तो ये perpendicular है, ठीक है बेटा, देन आपको एंगल क्या गिवन है, TQR, वो हमें गिवन है 40 डिग्रीज का। देन आपको गिवन है SPR 30 डिग्रीज। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है बेटा जी, हमें कैलकुलेट करना है एक्स एंड वाई। सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर हम इस ट्राइंगल को पिक कर लें, यस, कैन वी पिक दिस थिंग, यस, तो हमें ये x की वैल्यू मिल जाएगी। यस पार्थ, in this triangle, angle QTR plus angle TQR plus angle TRQ is equal to 180 degree, sum angle property. So जब हमने उसकी values put की तो what we got 90 plus 40 plus x is equal to 180 degrees. So हमारी जो x की वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 50 डिग्रीज। ओके, 180 में से हमने 130 माइनस किया तो x हमारा जो है वो वैल्यू क्या आ गई बेटा, 50 डिग्रीज। यस, क्लियर है इतना? यस मैम। ओके, आई होप इट्स क्लियर। अब बताओ मुझे यस मैम। कोई एक वेग आइडिया कि हम ये y कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम ट्राइंगल्स ले लेते हैं अपने। ट्राइंगल हम कौन सा लेंगे बेटा, हम देखो ये कंसर्न्ड किसके साथ है, इसके साथ कंसर्न्ड है। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये हम जिसको यूज करके इस एंगल y की वैल्यू निकाल सकते हैं। यस बेटा पार्थ, गिव मी एन आइडिया। Corresponding. नो, हाउ, वी आर नॉट गिवन एनी पैरेलल लाइंस।
alternate. No parallel lines बेटा. I have put a triangle for you. चलो एक हिंट छोटा सा और देती हूँ बेटा जी. ये जो Linear pair. नो, हाउ लीनियर पेयर बेटा? लीनियर पेयर का बहुत लंबा स्टेप हो जाएगा. पहले आपको सम एंगल प्रॉपर्टी यूज करके ये वाला एंगल निकालोगे, फिर आप ये वाला. अब ये जो बाय है ये इस ट्राइंगल के आउटसाइड है, मतलब कौन सा एंगल बन गया? ये एक्सटीरियर. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से आपका एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इट इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स टू ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स. तो अगर हम 30 डिग्री प्लस एक्स कर देंगे तो आई विल बी गेटिंग वाई. इज दैट क्लियर? यस. Yes, ma'am. अभी स्ट्राइक हुआ कि नहीं? हो गया ना? सो हमारा जो x की वैल्यू है वो क्या आई? 50 डिग्रीज एंड y की आ गई 80 डिग्रीज. नाउ बेटा नेक्स्ट. In the figure given, the sides AB and AC of a triangle ABCD are produced to points E and D, okay, respectively. If bisectors, इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर है BO and CO. ठीक है बेटा? So they meet at a point O. So you have to prove that BOC, मतलब ये वाला एंगल is equal to 90 डिग्री माइनस BAC. ओके, देखो बेटा, अब हमें प्रूफ ये करना है कि एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल BAC. अब आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये आपका ट्राइंगल है एक, ये वाला CBE. ठीक बेटा, हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया इनटू इक्वल हाफ. ठीक बेटा, ये हमने इक्वल हाफ बना दिया. इसका मतलब एंगल CBO इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एंगल. यही हुआ ना? यस. अब अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखो तो इन तीनों का सम क्या होगा? यस अंशु, क्या होगा बेटा इन तीनों का सम? 180. 180. यस. अगर इसको हम A मान लेते हैं, ये भी A हो गया, ये क्या बनेगा? Y. तो A प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. यस, Yes, ma'am. है ना? ये हुआ ना? एक सेकेंड देखो, A प्लस Y इज इक्वल टू 180 डिग्री. लीनियर पेयर. इसका मतलब 2A इज इक्वल टू 180 माइनस Y. यस. अब इसका मतलब A जो है, A क्या बना मेरा? CBO. ओके, हमने यहाँ पे CBO ले लिया, जिसको हमने ये कह दिया है कि CBO जो है वो क्या बन गया? हाफ ऑफ 180 माइनस Y. इज दैट क्लियर बेटा? समझ आ गया? इसी तरह से हम दूसरी साइड पे भी एंगल को मान लेंगे. ट्राइंगल CBO जो है वो 90 डिग्री माइनस y/2 है. सिमिलरली एंगल BCO हाफ ऑफ BCD आ गया, तो इसका मतलब क्या बन गया? वो 90 डिग्री माइनस z/2. अब हम उठा लेते हैं हमारा ट्राइंगल BOC, ये वाला. इज दैट क्लियर बेटा? कौन सा ट्राइंगल लेना है? ये वाला BOC. यस, तो नीचे वाला ट्राइंगल. ओके, अब इसके अंदर क्या होगा? ऑब्वियसली इसके तीनों एंगल्स को जब हम प्लस करते हैं तो वो 180 आ जाएगा. अब हमने जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज थी वो हमने यहाँ पे पुट की. सो व्हाट वी गॉट? एंगल BOC प्लस एंगल BCO प्लस एंगल CBO इज इक्वल टू 180. अब ये वाले हमने एंगल्स अभी निकाले हैं, तो हमने इनकी वैल्यूज पुट की. तो वैल्यूज जब हमने पुट की, व्हाट आई गॉट? एंगल BOC प्लस 90 माइनस z/2 प्लस 90 डिग्री माइनस y/2 इज इक्वल टू 180. अब ये 90 प्लस 90 180 दोनों साइड पे कैंसिल हो गया. तो इसका मतलब एंगल BOC जो है दैट बिकम्स इक्वल टू z/2 प्लस y/2. हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो आपका BOC जो है वो ये बन गया. इसको हमने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन. अब थर्ड इक्वेशन जो है, अब देखो ये जो है y प्लस z, ये आपका ट्राइंगल ABC के हिसाब से x प्लस y प्लस z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, और y प्लस z जो है दैट विल बिकम इक्वल टू 180 माइनस z. अब हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे. ओके बेटा, we will put this value in our third equation. अब
थर्ड इक्वेशन में जब आपने पुट की तो y प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक, ये हमने यहाँ पे वैल्यू पुट की तो ये मुझे मिल गया। ओके बेटा, तो जब ये वैल्यू मुझे मिली तो ये हाफ इसके साथ भी मल्टीप्लाई डिवाइड होगा और इसके साथ भी, सो इट बिकम्स एंगल BOC इज इक्वल टू 90 माइनस x/2, या हम कह सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल BAC। इज दैट क्लियर? यस, क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. okay beta, so now we are going to start with our exercise 6.3. now figure is given, sides QP and RQ, ठीक है, ये समझ आई? साइड PQ and RQ मतलब QR, they are reduced to points S and T respectively. if angle S, ये रहा SPR is equal to 135 degrees and angle PQT is equal to 110 degrees. So you need to find angle PRQ. आपको क्या क्या गिवन है बेटा? एंगल SPR गिवन है, एंगल PQT गिवन है, और आपको फाइंड आउट क्या करना है? एंगल PRQ. So can you find out? Yes, give it a try. I am waiting. Okay. कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करें? देखो दो रास्ते होते हैं हमारे पास, दो प्रॉपर्टीज गिवन है हमारे पास, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सम एंगल प्रॉपर्टी है। अब सम एंगल प्रॉपर्टी के लिए आपको एटलीस्ट 2 एंगल्स गिवन होने चाहिए। अब आपने यहाँ पे ये एंगल तो कैलकुलेट कर लिया यूजिंग द लीनियर एंगल प्रॉपर्टी, यस, ओके, लेकिन अभी भी आपके 2 मोर पेंडिंग है। अब आप ये देखो, ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर है, यस, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या बन गए? ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका ये मतलब है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल था ना, दिस विल बी इक्वल टू देयर सम, ये इन दोनों के सम के बराबर होगा। अब वी आर लाइक वी हैव द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, हमने ये अभी कैलकुलेट की, दिस एंगल इज गिवन, तो कैन यू फाइंड आउट दिस by using the exterior angle property? Yes, first what we did, हमने यहाँ पे एंगल जो है लीनियर पेयर के हिसाब से हमने अपना एंगल जो है QPR कैलकुलेट कर लिया। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के हमारा PRQ कैलकुलेट कर लिया। आई हैव टेकन द रिवर्स, मैंने जो किया है दैट इज लाइक मैंने इसको लीनियर पेयर बना लिया और ये वाला एंगल निकाल लिया और इसको बना लिया एक्सटीरियर एंगल, और ये आपके बन गए 2 ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंड द आंसर ऑब्वियसली विल बी द सेम। आपका क्या आ रहा है अंशु बेटा आंसर? PQR PRQ 65. हाँ जी 65, गुड। पार्थ बेटा, व्हाट्स योर आंसर? हाँ जी बच्चे, Ma'am, same. हाँ जी, Ma'am, same. कितना? एंगल 65. 65, ठीक है जी। सो आई होप यू हैव गॉट PRQ. द क्वेश्चन, समझ में आ गया है? चलो अब we will move Yes, on to ma'am. question number 2. अब in this figure एंगल x जो है बेटा that is given to be 62 degrees, okay, एंगल XYZ is equal to 54 degrees, मतलब ये टोटल एंगल आपको गिवन है, ठीक है, टोटल एंगल गिवन है। इफ सॉरी मैं यहाँ पे O लिखना भूल गई हूँ, इफ YO and ZO are the bisectors of angle XYZ and ZXZY respectively of this triangle, so you have to find OZY and YOZ, मतलब आपको ये एक तो ये इंटरनल एंगल निकालना है और एक ये एंगल निकालना है। तो हाउ कैन यू कैलकुलेट बेटा? ये बाइसेक्टर्स है। सबसे पहले आप ये देखो हिंट क्या हो सकता है हमारे लिए, हिंट क्या है? एक तो हमें ये एंगल गिवन है, अगर हम पूरे बड़े ट्राइंगल को देखते हैं ये एंगल गिवन है, इसको निकालना है। कैसे निकालें अंशु? पार्थ आप बताओ। ये पूरे बड़े ट्राइंगल में से बेटा आपके पास x भी है y भी है, z निकालना है, कैसे निकालोगे बेटा? हाउ विल यू कैलकुलेट z? Ma'am, 62 plus 54. हाँ जी, फिर
प्लस कर देंगे मैम 62 प्लस 54 को प्लस करके 180 में से माइनस कर देंगे। यस, उसको 180 में से माइनस कर देंगे। वेरी गुड। वो क्यों करेंगे 180 में से माइनस पार्ट? यस बेटा। मैम 62 प्लस 54 को प्लस करके माइनस 180। हाँ जी, वही पूछ रही हूँ, क्यों करेंगे बेटा 180 में से माइनस? कौन सी प्रॉपर्टी क्योंकि की? हमें थर्ड साइड निकालना है। हाँ जी, सम एंगल प्रॉपर्टी। यस, सम एंगल प्रॉपर्टी। वेरी गुड। अब आपको क्या हिंट क्या गिवन है कि ये जो है ना, ये ZO, ये क्या है? बाइसेक्टर है। इसका मतलब जो भी एंगल आएगा आप उसको हाफ कर दो, आपको OZY जो है वो मिल जाएगा। यस, टेल मी फास्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OZY? यस, यस अंशु, बताओ बेटा। मैम समझ नहीं आया। ओके बेटा, आप अगर इस ट्राइंगल को देखो XYZ, आप ये बीच वाली लाइंस को भूल जाओ अभी ये। ओके, तो ये आपका सिंपल क्या बन गया? एक ट्राइंगल बन गया जिसमें आपको दो एंगल्स गिवन है, थर्ड एंगल आपने निकालना है। तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे बेटा? सम एंगल प्रॉपर्टी। तो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो आपका Z आ जाएगा। ओके, अब मैम ये 54 पूरे की है। हाँ जी बेटा, ये पूरे किया मैंने, ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था। ये ना पूरा एंगल गिवन है बेटा, देखो X Y Z, they have already mentioned X Y Z is equal to 54. Is that okay? मैम 62 आएगा उसका भी। ओ Okay. हाँ जी बेटा, ठीक है ओ का अंशु? 62। यस मैम। ओके ओके। अब पार्थ ने बेटा क्या कैलकुलेट कर लिया है, बताएंगे मुझे एक बार? ओ का 62। ओ ठीक है, पहले तो हमें Z बताओ क्या आ रहा है? Z is coming out to जेड 7। Z क्या आ रहा है? पहले तो Z यस बताओ क्या है? मैम कुछ वो डायग्राम दिखाना। ये लो जी, मैम डायग्राम। ये रहा बच्चे, देखो। यस, ये 64। ना आई थिंक यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, 54 लिख दिया बेटा, इसको करेक्ट कर लेना, ये रॉन्ग मत उतारना। ओके, दिस शुड बी 64 ओनली, तो द आंसर विल कम आउट टू बी 54, 32 सॉरी। ठीक है, यस, ये देखो यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी और यहाँ पे मैंने करेक्ट करके लिखा हुआ है। ओके बेटा, so it is coming out to be 32. yes. अब बेटा O क्या आ रहा है बच्चे? आपने कैसे कहा 62 बेटा? मैम सम एंगल प्रॉपर्टी। हाँ, सम एंगल प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, हम इसको हाफ को प्लस करेंगे ना बेटा। आपने आई थिंक फुल को प्लस कर दिया, 54 का भी हाफ करोगे। ओके, ये पता है मैंने क्या किया है बच्चे? ये आई हैव डन, एक सेकेंड, ये मैंने बीच में क्या किया, यहाँ पे ये 64 तो निकाल लिया, उसके बाद व्हाट आई हैव डन, मैंने पहले OYZ का हाफ कर लिया क्योंकि हमें फुल एंगल गिवन है। यस, दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो ये आपको 27 हो गया उस छोटे ट्राइंगल में अब, और Z को आपने हाफ किया तो इट बिकेम 32। ओके, अब इन दोनों को आपने प्लस करना है और 180 में से माइनस करोगे तो एंगल O आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू 121 डिग्रीज अकॉर्डिंग टू सम एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, छोटा जो ट्राइंगल है, ये देखो, एक सेकेंड, हाँ ये देखो बेटा, ये छोटा जो ट्राइंगल है, ये वाला, अब हमने इसको लेना है। ठीक है अंशु, अब ये 54 का हाफ कर देते हैं क्योंकि उसने हमें कहा है कि ये दो बराबर एंगल्स में डिवाइड कर रहा है। एक तो एंगल हो गया ये वाला, एक एंगल हो गया ये, हमने पूरा निकाल लिया, इसको हम हाफ कर लेंगे, तो ये आ गया 32 और ये आ गया 27। अब इसको निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, हम इन दोनों को तो कर देंगे प्लस, फिर क्या करेंगे 180 में से माइनस। इज दैट क्लियर? अब समझ आया? पहले हमने अपना बड़ा वाला ट्राइंगल यूज करके वी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ एंगल Z। ओके, उसके बाद उसको हाफ कर दिया, एंगल Y को हाफ कर दिया।
फिर हमने छोटा ट्राइंगल पिक किया और उसमें सम एंगल प्रॉपर्टी यूज करके हमने YOZ जो है वो कैलकुलेट। मैम 121, मैम 121 आंसर। Yes, very good. Now the third question. In the figure given, if AB is parallel to DE, an angle ABC is equal to 35 degrees. Okay, हमें अब ये given है चीजें, and angle CDE is equal to 53 degree. अब हमने calculate क्या करना है? We need to calculate angle DCE. मतलब हमने angle निकालना है ये internal angle DCE, ये वाला angle निकालना है. So how will you calculate बेटा? कैसे निकालेंगे इसको? कोई आइडिया दो मुझे. ये और ये पैरेलल है, तो इसका क्या मतलब है? ये ऐसे है पार्थ बेटा, तो इस वाले में और इस वाले में कोई रिलेशन होगा? मैम जो ए है वो इक्वल होएगा। यस, बाय अल्टरनेट इंटीरियर। यस, वेरी गुड. ठीक है बेटा, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपका CED आ जाएगा इक्वल टू 35. ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो, ये आपका एक छोटा ट्राइंगल जो है वो बन गया. कौन सा बना ट्राइंगल बेटा? CDE. ये आपका एक ट्राइंगल बन गया जिसमें आपको दो एंगल्स नोन है, तीसरा आपने फाइंड आउट करना है. तो क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो? Yes, ma'am. Yes. How will you find out? Some angle property. Yes. So jaldi se quickly find it out and then let me know. Okay? Yes. Very good. Beta, see. We have done alternate interior angle tak. Now in this triangle, we will use some angle property to calculate DCE. The value of DCE comes out to be 92 degrees. Okay? Now question number 4. In the given figure, if lines PQ and PRS, they intersect at point T. Okay, PQ and RS, they are intersecting at point T such that angle PRT is 40 degree, angle RPT is 95 degrees, and angle TSQ is 75 degree, and you have to find angle SQT. So here we are given, हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं. सबसे पहले ऑब्वियसली वी विल राइट द गिवन थिंग्स. तो गिवन क्या है? एंगल RPT 95, एंगल PRT 40, एंगल TSQ 75. सो वी नीड टू फाइंड SQT. हमें ये वाला एंगल जो है वो कैलकुलेट करना है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट बेटा? मैं ये 95 होएगा अल्टरनेट इंटीरियर। नो बेटा, वी आर नॉट गिवन दैट दे आर पैरेलल, सिर्फ इंटरसेक्शन का. यस अंशु. Ma'am, first you will calculate PTR by some angle property. Yes, very good. Ma'am, then STQ and PTR are vertically opposite. Yes, very good. And then again some angle And property. then some angle property. Yes. Parth beta, first of all you will pick this triangle. ठीक है? PRT. Okay बेटा? तो इससे हम हमारा ये वाला एंगल जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे. Okay? And that angle will be equal to this angle. Why? Because they are. Q60 होएगा हाँ जी. मैम Q60 होएगा. Okay. ठीक है. And then again we will use, क्या यूज करेंगे? फिर से हम सम एंगल प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो हमारा ये वाला जो एंगल है वो आ जाएगा. बिकॉज अगेन वी विल बी हैविंग अदर टू एंगल्स, तो हम तीसरा एंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो काइंडली डू दिस फास्टली सो दैट I get my answer. मैम 60 Yes. Okay. Now, question number 5. In the given figure, if PQ is perpendicular to PS and PQ is parallel to SR. अब बेटा
ये चीजें आपको गिवन है, एंगल SQR is equal to 28 degrees and angle QRT is equal to 65 degrees. What we need to find? We need to find X and Y. Can you do this? Give it a try, beta. Okay. I will not help you. You got your mistake. So जब ये जो चीजें given है बेटा, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? देखो बेटा, अब क्योंकि PQ जो है वो SR के पैरेलल है, तो फुल एंगल दिस PQR इज इक्वल टू QRT, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इससे आपका एंगल X जो है वो आ जाएगा, विच कम्स आउट टू बी 37 डिग्रीज। ओके, नाउ अब हम ट्राइंगल लेते हैं PQS, क्योंकि हमें X मालूम चल गया है, Y we don't know, and this angle is given to be 90 degrees. So when using the sum angle property, we can calculate the value of Y. So by putting in the required values, 90 plus Y plus 37 is equal to 180 degrees. So Y comes out to be equal to 50 degrees. I hope that's clear. Yes, beta. Chaliye. Now the next, and I think it's the last question of this chapter. Okay, beta. Now in the given figure, side QR of triangle PQR is produced to a point S. हमने इस लाइन को थोड़ा सा बढ़ा दिया. If the bisectors of angle PQR and PRS meet at point T, okay, then prove that angle QTR is equal to half angle QPR. Clear? देखो बेटा, अब इसमें ना मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है. देखिए बेटा, अब एंगल PRS जो है दैट इज इक्वल टू एंगल P प्लस एंगल PQR. इसको और इसको हमने प्लस कर दिया क्योंकि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाई. अब इसको हम हाफ से डिवाइड कर देते हैं. हाफ ऑफ एंगल PR विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P प्लस हाफ ऑफ एंगल QR. अब हाफ ऑफ PRS क्या बना? हमने ले लिया TRS. ठीक है, ये गिवन है हमें. तो TRS जो है उसकी वैल्यू क्या बन गई बेटा जी? TRS की वैल्यू बन गई हाफ एंगल P प्लस एंगल QTR. इसको हमने I1 इक्वेशन मान लिया. नाउ वी विल प्रोसीड ऑन टू आवर क्वेश्चन. अब हम लेते हैं बेटा इन QRT, इसमें भी सेम वही है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको एंगल TRS जो है वो मिल जाएगा एंगल QTR प्लस एंगल T. अब आप ये देखो, ये दोनों चीजें I1 और I2 दोनों चीजें एंगल TRS से मिलती हैं, राइट? तो हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं. सो व्हाट आई एम गेटिंग हाफ ऑफ एंगल P प्लस एंगल TQR सॉरी इज इक्वल टू एंगल TQR प्लस एंगल T. अब ये TQR जो है वो कॉमन है एंड इट विल गेट वाइप्ड ऑफ. सो आई एम लेफ्ट विद हाफ ऑफ एंगल QPR इज इक्वल टू एंगल QTR. इसका मतलब एंगल QTR is equal to half of angle QPR. This is what we had to prove. Okay, so with this we finish off the chapter. ठीक है बेटा?